Hello students, today I am here to start the calculus application in physics. Calculation application in physics. Calculus is of two parts, differentiation and integration. So student, in this lecture I have started differentiation. Differentiation. Student, differential calculus and integral calculus is very useful in your physics. Sir, how it will used or when it is useful? Student, in previous classes you studied about speed, velocity and the many functions, correct? But suppose a particle moves from A to B, correct? So in up to 10th class, you know speed is equal to distance upon time. Distance upon time. You easily calculate the speed of a particle moves from A to B. Total is distance divided by time. But if we plot on graph, suppose A to B, suppose this is the time axis and this is displacement axis. Displacement axis. Okay student, you calculate the speed, you draw perpendicular on x axis or you can say time axis and also draw a perpendicular on displacement. This is displacement and this is time. So you calculate the speed if here displacement, so by dividing d upon t is equal to velocity of a particle, correct? Very easy. If you want to suppose this particle starts from A, correct? It reaches at C. Okay, suppose at 1, 2, 3, at 1 second, after 1 second it reaches C and displacement 1 meter. After 3 seconds, suppose it covers a displacement 3 meter. Okay, so here 3 meter and 3 seconds. So the velocity of a particle d upon t is equal to 3 upon 3 is equal to 1 meter per second. तो ये जो ग्राफ है इनको 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत इजीली सारी आपने पढ़ाई किया. बट हियर सपोज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, on plot, on graph, when we plot, we see not as a straight line, but suppose like this,
this is time axis, this is displacement axis. Okay student, here V is equal to displacement upon time, displacement upon time. And also here, if you think mathematically, in right angle triangle ABN, ABN, D is the perpendicular in right angle triangle ANB. D is the perpendicular and T is the base. Student, you know perpendicular upon base is tangent of angle. So this is tan A, this is tan A. Here A is the angle, or if this is theta, tan theta is equal to D upon T. Correct? And on the basis of coordinate geometry, also you know about the coordinate geometry, you studied in previous class 10th. This tan theta is also known as slope, So one more thing you clear here, the velocity, speed is also the slope, correct? If suppose if we take another graph, here we plot. Suppose this particle starts from its motion from here, A to B, correct? Time, displacement and displacement, correct? Student, suppose here the coordinates 1, 2 and 3, 6. Okay, here the coordinate of the position of a particle at any instant A, correct? Then find out the velocity. It is very easy. You draw perpendicular on x-axis and y-axis, also perpendicular draw. Okay, so here this is 1 and this is 2, this is 3, this is 6. Okay, and from here also you can calculate the velocity very simply. This triangle is formed ABN. Okay student, so here total this is 6 and this is 2, so this is 4 and total 3 and this is 1, so 3 minus 1, 2. So here velocity is equal to displacement 4 upon time 2 meter per second. You easily calculate from the graph. Okay, so through displacement time curve you can calculate the velocity. Okay,
very easily. If here velocity, acceleration, many more graphs you studied in previous class, but here you have no the graph as a straight line. If graph is like this, okay, it starts from A, means also you can say here in this graph the motion of a particle is not uniform, here motion is ununiform, not uniform. So if you want to calculate the speed, correct, suppose if this is a straight line AB, you also calculate from the previous concept, okay, means you can calculate the slope, but suppose here time 3 second, time 2 second, A to B, जैसे ये suppose x axis and this is y axis, coordinates of AB x1 y1 and x2 y2, x1 y1 and x2 y2, means this is y2 and this is y1, and so this is y2 minus y1, and this is x2 and this is x1, so this is x2 minus x1, so very easily you can calculate the slope y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, or you also can write delta y upon delta x, but if B moves towards A, suppose B, if B is very near to A, suppose this, तो यहां पर क्या होगा कि x1 x2 is very close each other, so delta x tends to 0, and delta y also. So this function of slope becomes not defined. If 0 upon 0 means not defined, delta y upon delta x implies that 0 upon 0 not defined. Okay student, not defined. But we want to know the slope at A when delta x tends to 0 and delta y tends to 0, means instantaneous slope. So here we don't write delta y, dy upon dx. Okay student, when the difference between the values is very small,
So you can write in the place of delta, you write d. Okay, dy upon dx is the slope and also called derivative. And this value can obtained by using differentiation. Student, according to these illustrations, you may clear the differentiation. Students, differentiation is used in your physics for calculating the position, calculating the instantaneous values of different quantities like velocity, acceleration, force and many more. अभी तक क्या है कि डिफरेंस रहता था, लेकिन किसी बहुत ही तात्क्षणिक, जिसको हिंदी में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हो गया कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन है वहां तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए आप यहां पर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. जैसे यहां पर क्या है, डिस्प्लेस, सपोज इन एनी क्वेश्चन displacement is 4 meter, time is 2 seconds, so you can calculate the velocity. But if suppose a moving body displacement is given by 3t square plus 4t plus 3, इस तरह के जब फॉर्म में आएगा और फिर कहता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो वहां पर डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे. तो डिफरेंशिएशन इज यूज्ड फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन यूज करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है. when you see the video 100% you have a notebook and pen and starts your hot notes to remember all these things. So differentiation is the mathematics of the discrete elements. Differentiation is for discrete elements, not continuous. मतलब फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. ओके, वी यूज द डिफरेंशिएशन फॉर द ब्रेकिंग द फंक्शन को ब्रेक करके हम लोग किसी बीच के पार्ट की जब स्टडी करनी होती है तो हम लोग यहां पर डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट सपोज you have constant, correct? You know, no change in constant. So if you want to know the value of constant is change with respect to x, okay, or with respect to y, correct, or
the value of constant change with respect to time. Correct? Student, you know the value of constant means remains always no change. Remains constant, हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज इन इट्स वैल्यू, ओके, फॉर एनी कंडीशन. सपोज दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. Okay, and the value of capital G, if you study electricity, magnetism, mechanics, light, or you studied anywhere, the value of G is not changed. So the value of constant is always same. So it is always no change means the value of derivative of constant is always zero. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि d by dx कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t is not change. That's why the change with respect to x or with respect to y or with respect to time, the derivative of constant is always zero. It is the first conclusion, or you can say it is the first formula. Suppose d by dx of 2, you know 2, suppose your age is 16 years. ओके, आज की डेट पे आपकी एज है 16 ईयर. करेक्ट? तो वो जो एज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी. करेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी. तो एज को हम क्या कांस्टेंट कह सकते हैं? नहीं. कांस्टेंट क्या है? जैसे मान लीजिए कि कैपिटल G की वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू में कभी टाइम के साथ, प्लेस के साथ चेंज ना हो उसे ही कांस्टेंट कहेंगे. तो 2 ये है, तो हमारे लिए, आपके लिए, आपके फ्रेंड के लिए, सभी के लिए ये वैल्यू 2 रहेगी. इसको चाहे जहां से देखो आप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. तो इसी को हम कहते हैं d by dx कहो, चाहे d by dy कहो, चाहे d by dz कहो, कुछ भी कहो, अगर ये कांस्टेंट है, c मीन्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 0. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. ओके स्टूडेंट, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा. अब यहीं पे जैसे हम कहें d by dx अगर कांस्टेंट a है तो भी वो 0 होगा. करेक्ट? सेकेंड फार्मूला, इफ यू वांट टू नो about the change with respect to itself, suppose x, okay student, d by dx x, मतलब x का x के ही रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट क्या होगा? ये 1. इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? जैसे x है और x के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यू गेट वैल्यू 1. फॉर एग्जाम्पल d by dt, d by dt with respect to t is equal to 1. is equal to 1. ओके, मतलब t के
रिस्पेक्ट में t का ही जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1 होगा. सपोज द थीटा, ओके, एंड d by d थीटा इज ऑल्सो 1. ओके, तो जैसे जो वैल्यू गिवन है उसका उसी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1. थीटा, ओके, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज ऑलवेज 1, एंड द चेंज इन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0. तो यहां पर आपके दो फार्मूले हो गए, d by dx कांस्टेंट का 0 होगा, d by dx x का 1 होगा, और ये आपके इलस्ट्रेशंस हो गए. ओके स्टूडेंट, अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, बहुत इजीली और बहुत स्लोली मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं, और इजीली बता रहा हूं, स्लोली बता रहा हूं, तो बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से इनको आप पेन से जो मैं बता रहा हूं उनको नोट करते जाइए और करते जाइए. नोटबुक में आपको सब कुछ आ जाएगा स्टूडेंट, डोंट वरी. सपोज यू नो द चेंज इन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, and change means derivative with respect to itself is always 1. So here suppose you want to know d by dx cx. अब यहां क्या करेंगे आप, अगर कोई आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट के साथ आ जाए, किसके साथ, कांस्टेंट के, तो वेरी इजी 0 मत कर दीजिएगा. ये c यहां आया एंड d by dx x हो गया. मतलब यू सेपरेट द कांस्टेंट, ओके, यू टेक फर्स्ट कांस्टेंट, आफ्टर दैट यू पुट d by dx, ये वेरिएबल हो गया, करेक्ट. एंड यू नो d by dx of x, भूल गए, d by dx of x is equal to 1. Student, don't forget, is equal to 1. Okay, so c into 1 is equal to c, constant हो गया, correct. Okay, we take another illustration. Suppose 3x. Student, 3 is also constant, d by dx of 3x. So you take first 3, d by dx x is equal to 3 into 1 is equal to 3. Okay student, and one illustration more, d by d theta of tan theta. Tan is also constant, so tan d by d theta of theta is equal to 10 into 1 is equal to 10. तो इस तरीके से you see in your given question, if any constant is given with variable, you take first constant, after put the d by dx x is equal to c into 1 is equal to c. तो इस तरीके से ये हो गया. ओके, तो ये आपकी बात हो गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा एंड डिफरेंशिएशन with itself of any quantity is always 1. ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट फार्मूले में इधर आपको रब नहीं करूंगा
और आप देख देख कर इसको लर्न करते रहिए। फर्स्ट डी बाई डी एक्स स्टूडेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड फॉर्मूला d by dx x raised to power n, x raised to power n, where x is the variable, n is the number, n is the number means integer. Okay, it may be positive or negative, n is the number. So formula is, तो ये नंबर पहले आ गया एंड x रेज टू पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं ना। n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब सर इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिए वेरी इजी। सपोज क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 5, करेक्ट। इलस्ट्रेशंस d by dx x raised to power 5, x raised to power 5 by applying formula power you take first and x 5 minus 1. So answer is, final answer 5x raised to power 4. Okay student, if we will take another illustration, d by d theta of theta raised to power 12। अब देखिए यहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज थीटा का रिस्पेक्ट थीटा से। अभी मैं बताता हूं कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, 12 थीटा रेज्ड पावर 12 minus 1, 12 minus 1. Is it clear students? So we will take another illustration, d by dx 3x raised to power 5, 3x raised to power 5. So student, this concept you use. Okay, first you take constant 3 d by dx x raised to power 5। ओके, तो कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया, फिर क्या हुआ 3 पावर पहले आया 5 x raised to power 5 minus 1, so 5 3 is 15 x raised to power 4. This is the final answer. Okay student, any problem? No, it is clear। तो ये इलस्ट्रेशन हो गए आपके फार्मूला नंबर 3। अब देखें फार्मूला नंबर 4, d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। यहां फार्मूले आपको लर्न करने हैं, आपके इसके प्रूफ से मतलब नहीं है, वो मैथमेटिक्स में होगा। यहां फार्मूला लर्न करिए, d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ओके स्टूडेंट, अब इस पर कैसे यूज होगा, सपोज e रेज टू पावर x, ये e रेज टू पावर x ही रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x log a बेस e। क्लियर हो रहा, दिख रहा है, a रेज टू पावर d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x log a बेस e, log a बेस e। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला 6 d बाई डी एक्स log x बेस a और log x बेस e, log x बेस e।
So student, d by dx log x base e is equal to 1 upon x. 1 upon x. Suppose log x base e is equal to 1 upon x. Seventh formula, d by dx log x base e. Log x base e is equal to 1 upon x log e base e. Log e base e. Correct? Suppose here log x base 10. Log x base 10. So student, log x base a means 1 upon x log x base 10. It is the final answer of log x base 10. Correct? Suppose if we will take another illustration, second, d by dt log t base 3. तो क्या होगा ये? x के प्लेस पर क्या है यहाँ? t, और t के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपका क्या? 1 अपान t log t बेस 3. log t बेस 3. ओके स्टूडेंट? ओके. अच्छा, अब यहां पर देखिए d बाई dx log t base 3. It is very important to remember. क्या दिया क्वेश्चन कि log t base 3 का आप d by dx करो. तो स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान रखें, x तो dx, x तो dx. Differentiation is always with respect to the variable, with respect to the variable. But here variable t, this is variable x, so it is treated as constant. It is treated as constant. तो ये क्या आ जाएगा? 0. यहां पर t होता तो वेरिएबल का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता. करेक्ट? लेकिन यहां पर वेरिएबल t है और ये बिल्कुल अलग वेरिएबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब होगा तो वो फॉर्मूला यूज होगा. अदरवाइज यू विल गेट फाइनल आंसर 0. तो स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएशन जो है वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है तभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज होंगे. अदरवाइज यू ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. ओके, तो हो गया d by dx constant 0, d by dx x 1, d by dx of x raised to power n and x raised to power n minus 1, d by dx e raised to power x is equal to e raised to power x, d by dx a raised to power x is equal to a raised to power x log a base e, d by dx log x base e is equal to 1 upon x, d by dx log x base a is equal to 1 upon x log e base a. एक चीज मैं और बता दूं कि यहां पे भी आप log e base e कर सकते हैं. क्या? log e base e. एंड स्टूडेंट यू नो log e base e is equal to 1. दैट्स वाई ये 1 हो जाएगा और हम लोग इसीलिए ये वैल्यू यहां पर नहीं लिखते क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इंटू 1. तो इंटू 1 मीन्स 1 अपॉन x. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो है ये फार्मूले हो गए बेसिक. ओके, सो हियर वी रब इट. तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग. अगेन वी हैव द डेरिवेटिव्स ऑफ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. 8th d by dx sin x, d by dx sin x is equal to
cos x, d by dx cos x is equal to minus sin x, d by dx tan x is equal to sec square x. Okay, 11 d by dx cosec x is equal to minus cosec x cot x, d by dx of sec x is equal to sec x tan x, and d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. These are the formula. ओके, देखिए फार्मूले बहुत है, फिजिक्स में जो यूजफुल है मैं वो ले रहा हूं. d by dx of sin x is equal to cos x, d by dx of cos x is equal to minus sin x, d by dx of tan x is equal to sec square x, d by dx cosec x is equal to minus cosec x cot x, d by dx of sec x is equal to sec x tan x, and d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. Okay student, so if आपका मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x. ओके स्टूडेंट, और ये कहते क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके स्टूडेंट, सपोज you have y is equal to sec x, y is equal to sec x, then d by dx of y is equal to d by dx of sec x, and sec x formula sec x tan x, sec x tan x. ओके, तो ये सिंपल हो गए. जैसे यहीं पर अगर हम ले लेते कि y इज इक्वल टू 5 sec x, 5 sec x, तो याद रखिए कि ये कांस्टेंट हो गया, तो ये पहले आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 d बाई डी एक्स sec x इज इक्वल टू 5 sec x tan x. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये सिंपल फार्मूले हैं आपके, जिनको कि सर सिंपल है, बहुत ढेर सारे हैं. जब आप करेंगे प्रैक्टिस, ओके, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जिस तरह से मैं फटाफट लिखता जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप और स्पीड से इसको लिखेंगे और कर लेंगे. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, और आप सारा कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, इन फार्मूलों का यूज देखिए. तो सिंपल फार्मूले दिए हैं, आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, सपोज y इज इक्वल टू e raised to power 10x, e raised to power 10x. okay, second y is equal to 10 raised to power 20x. third y is equal to 5
साइन x रेज़ टू पावर 4, फोर्थ y इज इक्वल टू साइन x क्यूब, ओके। फिफ्थ y इज इक्वल टू थ्री टेन स्क्वायर x, थ्री टेन स्क्वायर x। सिक्स्थ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन क्यूब x, साइन क्यूब x। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इनको आप नोट कर लें। इनको मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे यूज करेंगे आप। ओके, तो इन डिफरेंशिएशन वी यूज चेन रूल। चेन रूल वेरी इजी। देखिए, solution first. Okay, here differentiate with respect to x. D by dx of y, d by dx of y. First you use the e raised to power x, e raised to power x. अब यहां पर जो 10x है इसको आप यहां पर कैपिटल X मान लें। क्या मान लें? कैपिटल X। ओके स्टूडेंट, 10x इज इक्वल टू क्या लिया आपने? कैपिटल X। तो आप एज्यूम करो, इफ यू एज्यूम यू हैव y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, करेक्ट? तो dy अपॉन d, कैपिटल ध्यान रखिएगा, तो e रेज़ टू पावर x हो जाता, करेक्ट? बट हियर small x and this is capital X, this is capital X. तो कॉन्सेप्ट इज जितने भी वेरिएबल आपके क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन होंगे सबका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल, मतलब सीक्वेंस में आपको करना होगा, करेक्ट? मैं भी बताता हूं चेन रूल कैसे यूज करते हैं। देखिए, एक बता देता हूं, e रेज़ टू पावर, तो आपको ये पावर नहीं देखना, पावर को x एज्यूम कर लेना है। तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर 10x। तो ये हो गया e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर 10x हो गया। क्या हो गया? लेकिन ये पावर जो है ये अपने में सेपरेट वेरिएबल है, तो यहां पर आपने क्या किया? d बाई डी एक्स ऑफ 10x, करेक्ट? तो 10x में मैंने बताया था कि आप जो है कांस्टेंट को पहले ले लेंगे 10 एंड d बाई डी एक्स ऑफ x, तो क्या हो गया? 10 e रेज़ टू पावर 10x, ओके? एंड द d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, then you will get the final answer 10 e रेज़ टू पावर 10x। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ? चलिए मैं और प्रॉब्लम्स ले लूंगा तो पूरा भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि d बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर x, d बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर x। तो x के प्लेस पर 10x, 3x, 4x जो भी हो, आप e रेज़ टू पावर पे e को तोड़ दीजिए, करेक्ट? और पावर में जो इफ मोर देन x मीन्स 10x, 3x, थीटा x एंड सो ऑन, तो आप इसका डिफरेंशिएशन जो है वो सेपरेटली करेंगे इस तरीके से, करेक्ट? तो चेन रूल आप समझ लें, नोट कर लिया? यहां पर स्टूडेंट चेन रूल में क्या है देखिए, समझिए। सबसे पहले d बाई डी एक्स किसका करेंगे? पावर, ओके? देन d बाई डी एक्स बेस एंड देन
डी बाई डी, ये मल्टीप्लाई में है, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल. ओके, दिस इज द चेन रूल फार्मूला. ओके, जैसे इफ यू हैव एनी फंक्शन in which power base angle ओके गिवन है, तो आप पहले पावर का करेंगे तो बेस एंगल को एज इट इज रखेंगे. ध्यान रखिएगा, when you differentiate the power base angle constant, when you differentiate base then angle power constant, and if you differentiate angle power base constant. सर इसको एक और लेते हैं, सेकेंड. करेक्ट, ये तो हो जाएगा. 10 बाहर ले लेंगे, e रेज टू पावर 20x, तो d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 20x, तो ये पहले आ जाएगा e रेज टू पावर 20x और 20x का 1. देखिए बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, समझिएगा. 10 बाहर आया, d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 20x, तो ये e रेज टू पावर 20x हो गया, और फिर d बाई डी एक्स 20x. ओके, तो 10 e रेज टू पावर 20x और 20x का हो जाएगा 20 बाहर, x का 1, तो ये हो गया 200 e रेज टू पावर 20x. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. करेक्ट स्टूडेंट? चलिए, तो कुछ क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है, आप क्लास में बैठे हैं, ध्यान रखिएगा. तो अब थर्ड, d बाई डी एक्स साइन x रेज टू पावर 4. ओके, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ पावर, बट हियर जो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर n is greater than 1 always. n is greater than 1. तो whole power 1, whole power n, but d by dx x raised to power n is applicable when n is greater than 1. n is greater than 1 होना चाहिए स्टूडेंट. ओके, तो यहां पर पावर तो है नहीं, फिर क्या करेंगे? बेस. क्या किया मैंने? बेस. जब बेस का करेंगे तो पावर और एंगल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. बेटा स्टूडेंट इसको नोट कर लो. अच्छा भाई, व्हेन यू डिफरेंशिएट द पावर, बेस एंड एंगल ट्रीटेड एज कांस्टेंट. ओके, अगेन व्हेन यू डिफरेंशिएट बेस, then power angle treated as constant. Okay, when you differentiate angle, power base acted as a constant. In the same sequence, in this illustration, sine base यहां क्या है? sine है, तो sine is break into cos. किसमें टूटे हुए? cos. सो cos और ये एंगल जो है x रेज टू पावर 4 ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये x रेज टू पावर 4 हो गया. करेक्ट. अब d बाई डी एक्स एंगल यहां x रेज टू पावर 4 है. एंगल क्या है? x रेज टू पावर 4. अब जब x रेज टू पावर 4 है तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? x रेज टू पावर n. x रेज टू पावर n बहुत इजी हो गया. cos x रेज टू पावर 4. ओके, एंड d बाई डी एक्स x रेज टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा भैया? n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 4 x रेज टू पावर 4 माइनस 1, सो 4 cos x रेज टू पावर 4 इंटू x क्यूब. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ? बहुत स्लो चल रहा है. चलिए कोई बात नहीं, एक हम और ले लेंगे लेक्चर, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स. अब यहां देखिए, ये फोर्थ इलस्ट्रेशन. तो फोर्थ में
क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल क्यूब। ओके, तो अब यहां क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पावर है, क्या है, पावर। तो जब पावर हो गया स्टूडेंट तो x रेज टू पावर n पे टूटेगा, तो 3 साइन x रेज टू पावर 3 माइनस 1। ओके, पावर जब होगा तो बेस कांस्टेंट हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो बेस और एंगल कांस्टेंट, करेक्ट। चलिए यहीं पे अगर हम ले लेते y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 4, तो ये इस तरह से हो जाता, पावर कर रहा हूं तो बेस एंगल कांस्टेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, बेस का d बाई डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 4, करेक्ट, साइन एक्स रेज टू पावर 4, ये हो गया 3 साइन क्यूब एक्स रेज टू पावर 4, करेक्ट। अब एंगल कांस्टेंट हो जाएगा, बेस का करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x रेज टू पावर 4। ओके, अब एंगल कांस्टेंट हो गया था, अब एंगल कर लो, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4। ओके, तो क्या होगा, 3 साइन क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 cos x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर n पे ब्रेक होगा, तो ये हो गया 4x क्यूब, 4x क्यूब, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 साइन क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स। ये नोट हो गया, ओके, पॉज करके नोट करिएगा, देखेंगे। तो फिफ्थ, d बाई डी एक्स ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा स्पीड में, 3 कांस्टेंट हो गया, tan स्क्वायर एक्स मीन्स tan स्क्वायर एक्स, तो x रेज टू पावर n में टूटा, 2 tan x रेज टू पावर 2 माइनस 1। ओके, एंड d बाई डी एक्स tan x, तो ये हो गया 3 2 जा 6 tan x, एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ओके, ये हो गया, करेक्ट, वेरी सिंपल। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x होल रेज टू पावर बाई 2, फर्स्ट यू ब्रेक एज x रेज टू पावर n, फिर साइन टूटेगा किसमें, cos में, x का 1 होता है। तो इस तरीके से इस पार्ट में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फंडा है वो क्लियर किया स्टूडेंट। सो यू गो थ्रू दिस लेक्चर एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट, एंड आई विल गिव some questions for your homework. Okay, first question, y is equal to under root tan x cube. Second, y is equal to sin cos x cube. Third, y is equal to tan sin log x base e. Okay. Fourth, y is equal to cos sin tan, and fifth and last, y is equal to
log sin x raised to power 4. Correct? These are the questions for your homework. Okay, student? So, all the best. Good day.